Good morning, student of class 3. How are you? I hope student you all are well, fit and healthy. So student, watch the video. Write at the time when you are watching the video, you can note down the doubts in your rough copy and you can ask your doubt in online doubt session class. So student, before starting a new chapter, that is chapter number 11, let's do the recapitulation what we have done in our previous video. So student, in our previous video we have completed the question answers of the chapter 10 and we are doing long question answers. How is a permanent house different from a temporary house? What are the difference between permanent house and temporary house? That we have discussed yesterday, and in the last we have completed one question. Name the factors required for a good home. So little discussion we will do of this question, because I have completed the time and at that time videos is also over. So if you want, what are the factors required for a good home? This thing I have already discussed with you. Whether the house is small or big, it doesn't matter. Whether your house is small or big, it doesn't matter, student. There are some reasons, there are some factors according to which we can say the house is good. Okay, so in that we have discussed, you can say your house is good only when it has ventilation. Okay, what it means, a good house should have plenty of doors and windows that allows sunlight and fresh air to come inside the house. Okay, so for a good ventilation there should be plenty of doors and windows so that the sunlight and fresh air come in the house. And after that we discuss the second point, that is safety. The house in which you are living, so the walls of the house, the roof of the house should be strong. Then only you are safe. And your house also protects you from heat, rain, cold and other dangers also. And after that, the third point which we have discussed in this is that cleanness. A clean house is a healthy house. You daily observe that your mother cleaning the house regularly, or you can say also daily. What is the reason for it? Reason is that if you want to be fit, healthy and strong, your surroundings, your house in which you are living and even your surroundings, that should also be neat and clean. That should also be neat and clean. So let us student, today date is 8/8/2020, chapter number 11. Let's start a new chapter, a friendly neighborhood. Okay, now so the name of our new chapter is a friendly neighborhood.
Let's see, student, what are the learning objectives after studying this chapter. What you will learn from this chapter? The need to develop a neat and clean neighborhood. इज इट क्लियर? ये हम लोग अक्सर हमेशा हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर हम लोग हेल्दी और फिट ये सब रहना चाहते हैं तो हमारी सराउंडिंग्स भी नीट और क्लीन होनी चाहिए. ठीक है, सराउंडिंग मीन्स हमारे वियर द प्लेस वेयर वी आर लिविंग. सो जो उसके अगल बगल का जो एरिया है, जो सराउंडिंग है, जैसे आप भी कहीं रहते हो तो ऐसा तो नहीं आपका घर जंगल में, आपके घर के बगल में बहुत सी बिल्डिंग्स होंगी, बहुत सी मार्केट होगी. ठीक है, तो दैट सराउंडिंग्स दैट आल्सो बी नीट एंड क्लीन. इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्पिंग वन अनदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए. इज इट क्लियर? एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नेबरहुड सर्विसेज. In this chapter we will study there are many types of a neighborhood services in our area. जहां हम रहते हैं वहां बहुत सी important neighborhood services हैं. So we must understand the importance of neighborhood services. हमें इस neighborhood services की importance के बारे में क्या importance है in our life, we will study it in a detail. Okay, so let's start with a small discussion between the two kids which is given in your book. Your friend Rahul and Fatma live near each other house. They go to school together in a van and play together in nearby park every day. They celebrate Diwali and Eid together. Thus, Rahul and Fatima are not just a friend. They are also called neighbors. And also the area around their houses is called neighborhood. So, two new words comes here, that is neighbor and another is neighborhood. Okay, see, small discussion of the two kids is given here. Rahul and Fatima, they are good friend also. Even they are going to school in a same van also. They are playing in the same park also. It means they are neighbors. Is it clear? It means they are neighbor, and also the area around their houses is called a neighborhood. So let's understand this. Student, we are living in the house. इससे पहले वाला चैप्टर आपने हाउस ही पढ़ा है ना. हाउस इज ए प्लेस वेयर वी आर लिविंग विद अदर मेंबर्स ऑफ ए फैमिली. ठीक है, यही हमने पढ़ा. हाउस क्या है? हाउस वो प्लेस है जिसमें हम तो रहते हैं, इसके साथ साथ हमारे फैमिली के अदर मेंबर्स भी रहते हैं. दैट इज ए हाउस. इन द सेम मैनर स्टूडेंट, देयर आर मेनी फैमिलीज अराउंड योर हाउसेज. देयर आर आल्सो मेनी हाउसेज. ठीक है, जैसे आप अपने हाउस में बेटा रह रहे हो अपनी फैमिली के संग, इन द सेम मैनर in other houses also people are living in a families. So what are they? The houses which are near to your house, and peoples and different families are living there also. So what are they? They are your neighbors. They are your neighbors. So आपके क्या है बेटा? Neighbors हैं. ठीक है, जैसे आप अपनी फैमिली में अपने फैमिली मेंबर के संग रह रहे हो तो आपके हाउस के अगल बगल भी बहुत से हाउसेस होंगे जहां भी डिफरेंट फैमिलीज रह रही हैं. तो वो क्या है आपके? व्हाट रिलेशन यू हैव विद अदर फैमिलीज.
जो अदर फैमिलीज है और जो अदर फैमिलीज हैं जो हाउसेस में रह रही हैं, डिफरेंट हाउसेस में हैं और आपके अगल बगल रहते हैं, सो दैट आर योर नेबर्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेबर्स बोलते हैं। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, राहुल, स्टैंड अप, टेल फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग। यस, 39 GTC. Okay, Rahul is coming to school from 39 GTC. Okay, Ashish, you stand up, you tell from where you are coming. Pandepur. So student, see, Rahul is coming from 39 GTC and he is coming from Pandepur. So both of them are coming from the same area? No. 39 GTC is inside the cantonment area and he is coming from Pandepur. So are they both are neighbors? No. Are they neighbors? No. Okay. So see, you are living your houses and the persons or the members who are close to your house and they are living in different houses. आपके हाउस के क्लोज जिनके हाउस हैं लेकिन वो अपने हाउस में रह रहे हैं, आपके हाउस में नहीं रह रहे हैं, तो वो आपके क्या हो गए? नेबर्स हो गए। वो आपके क्या है बेटा? दे आर योर नेबर्स। अब देखो अनदर दिया है नेबरहुड। सी, व्हेन वी कम आउट फ्रॉम आवर हाउसेस, जब अपने हाउसेस से बाहर आते हैं, सो देयर आर कॉमन प्लेसेस जो सबके लिए सेम है। ठीक है, जहां भी हम रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, जो भी अगल बगल की लोकेलिटी है, जो सराउंडिंग्स हैं, वो सबके लिए कॉमन है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप रोड का एग्जांपल ले लो, रोड पे सब चलते हैं, कुछ व्हीकल से जाते हैं, समवन वॉक। ओके, तो वो जो नेबरहुड, जो हमारे अगल बगल जितनी भी इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं जो कि सबके लिए कॉमन है, ऐसा नहीं है कि कोई एक यूज कर सकता है दूसरा नहीं। So that is your neighborhood. That is your neighborhood. So neighborhood is a part of a city, town or village. ठीक है, आप अगर विलेज में रह रहे हो तो आपके विलेज के अगल बगल का जो भी एरिया होगा, जहां वो जो भी वहां पे सर्विसेज होंगी, इज इट क्लियर, वो सब आपकी नेबरहुड सर्विसेज में आएंगी। अगर आप टाउन में रह रहे हो तो जिस फ्रॉम इन विच एरिया यू आर लिविंग, what facilities are you are getting in that area, that is your neighborhood services. And if you are living in the cities area, so what facilities are available, that all are, जो भी आपके उस एरिया में जितनी भी प्लेसेस हैं जो आपकी फैसिलिटीज की हैं, वो आपके किस में आएंगी? नेबरहुड सर्विसेज में आएंगी। ठीक है, तो व्हाट आर नेबर्स और व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन नेबर्स एंड नेबरहुड सर्विसेज। देखो फॉर एग्जाम्पल, नेबरहुड इज ए पार्ट ऑफ ए सिटी। नेबरहुड क्या है? पार्ट है सिटी का, या तो विलेज का ले लो या तो टाउन का। सो पीपल ऑफ ऑल द कम्युनिटीज लिव टुगेदर इन अ नेबरहुड। बिसाइड हाउसेज देयर आर मेनी अदर प्लेसेस इन द नेबरहुड। देयर आर मार्केट, पार्क, स्कूल एक्स्ट्रा। सो नेबरहुड जो है बेटा, ठीक है, तो उसमें पीपल ऑफ ऑल द कम्युनिटीज बोला है। इट मीन्स वेदर द पर्सन इज बिलोंगिंग टू हिंदू और इट इज मुस्लिम और इट इज सिख और दैट पर्सन बिलोंगिंग टू क्रिश्चियन, फ्रॉम एनी कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी का अगर वो कोई भी रह सकता है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर ऐसा किसी के लिए बोला गया कि ये
नेबरहुड आप कोई भी रह सकता है, ठीक है। पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज लिव टुगेदर इन अ नेबरहुड, ठीक है। आप अपने अगल बगल ही देखो, आपके अगल बगल में आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल जब फेस्टिवल्स आते हैं आप देखते होगे कि बहुत से डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के लोग भी आपके अगल बगल रहते हैं जो आपके नेबर्स हैं। तो ऐसी कोई कंपल्सरी टर्म और कंडीशन नहीं है कि आपके नेबर्स जो होंगे दे आर ऑल्सो बिलोंगिंग टू द सेम रिलीजन फ्रॉम विच यू आर, ठीक है। हो सकता है आपके बगल में नेबर में, आपके नेबर में मुस्लिम्स हो या हिंदू हो, आपके नेबर में या क्रिश्चियंस हो या सिख्स हो, एनी वन कैन लिव, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई पार्टिकुलर पर्सन या कोई पार्टिकुलर रिलीजन के पर्सन ही रह सकते हैं, ठीक है। ऐसा आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, आपके अगल बगल देखते होगे फेस्टिवल में, जैसे हिंदूज ही हैं, हिंदूज भी एरिया वाइज अलग अलग हैं, ठीक है। नॉर्थ वाले अपने ढंग से फेस्टिवल मनाते हैं, साउथ वाले अपने ढंग से फेस्टिवल मनाते हैं, वेस्ट बंगाल एरिया में चले जाओ तो वहां अपने ढंग से फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। तो आपको अपने अगल बगल अलग अलग रिलीजन और कास्ट के लोग मिल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन है कि नहीं सब एक ही होने चाहिए, ठीक है। द पर्सन बिलोंगिंग टू एनी कम्युनिटी कैन लिव इन द नेबरहुड, किसी भी कम्युनिटी से वो पर्सन बिलोंग करता होगा वो नेबरहुड में रह सकता है। इज इट क्लियर? नाउ सी स्टूडेंट, when we are talking about the neighborhood, okay, तो फॉर एग्जांपल सी स्टूडेंट, द प्लेस वी आर लिविंग, हम जहां रहते हैं, अगर हम वाराणसी में रह रहे हैं तो हमें पढ़ना है, तो जिस एरिया में बनारस में रह रहे हैं हम वहीं के अगल बगल के स्कूल खोजेंगे, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है वाराणसी से रोज हम दिल्ली पढ़ने जाएंगे, ठीक है। तो नेबरहुड प्लेसेस आप कहीं का भी देख लो, जहां भी आप रहते होगे, देयर आर सम कॉमन सर्विसेज विच आर फाउंड इन ऑल द एरियाज। जैसे आप कहीं भी चले जाओ, आप तो आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हो, हमारे स्कूल तो मैक्सिमम बच्चे कहां से हैं, आर्मी से हैं। तो ऐसा तो नहीं है वाराणसी से आप चले जाओगे तो दूसरे शहर में वैसा कोई चीज नहीं होगा, एवरीथिंग न्यू हो जाएगा, लगेगा पता नहीं हो क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं ना होता है। आप बनारस में पढ़ रहे हो, इफ योर फादर पोस्टिंग कम्स इन दिल्ली, आप दिल्ली में जाओगे वहां भी आपको स्कूल मिलेगा, वहां भी हॉस्पिटल्स होंगे, वहां भी पिक्चर्स हॉल्स होंगे, मॉल्स होंगे, मार्केट होगी फॉर बाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए थिंग्स, वेजिटेबल मार्केट्स। So these are the common services which are found in all the areas। ये ऐसी कॉमन सर्विसेज हैं जो आपको हर एरिया में मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल दो चार नाम मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप जहां रहते होगे तो वहां मार्केट होगी ही होगी, बिकॉज इफ यू हैव टू बाई एनीथिंग आप मार्केट में ही ना जाओगे सामान लेने, ठीक है। स्कूल होगा ही बच्चों के लिए, ठीक है, स्कूल है, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, बैंक, पुलिस स्टेशन, आपको रिलीजियस प्लेसेस भी मिल जाएंगे, हिंदूज गोज इन टेम्पल, ठीक है। आप जहां रहते होगे वहां आपको टेम्पल भी मिल ही जाएगा। सिख गोज इनटू गुरुद्वारास, मुस्लिम मॉस्क्यूज एंड क्रिश्चियन चर्च। सो दीज टाइप्स ऑफ ए फैसिलिटीज यू विल फाउंड इन ऑल द एरियाज, सारे एरियाज में आपको ये नेबरहुड सर्विसेज अवेलेबल होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है वेयर आई एम लिविंग वहां मार्केट होगी होगी, सो दैट आई कैन इजिली गो एंड बाई द थिंग्स फॉर माई हाउस ऑल्सो। और आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आपको अगर बुक्स लेनी है या कुछ लेनी है तो आपके अगल बगल जो शॉप होगी, बुक्स शॉप होगी, यू विल गो देयर
and pay the money and take the things from there. Market है, school, hospital, post office, bank, police station, temples. So all these types of things you will find in all the areas, and these are our neighborhood services. Okay, and I have just written few names on the board. Just think about it, student. Without these neighborhood services, life of the people, life of the people is good. If these types of services are not found in their area, then you feel a comfortable life? No. ठीक है? So these neighborhood services are very useful for the people who are living in that area. So these neighborhood services are very useful for the people who are living in that area. जैसे अब मान लो फॉर एग्जांपल 39 जीटीसी की बात कर लेते हैं. 39 जीटीसी में यू सी द मार्केट भी है, वहां स्कूल इज आल्सो देयर, हॉस्पिटल इज आल्सो देयर, post office is also in 39 GTC, bank is also in 39 GTC, police station is also in Sadar Bazaar, temple is also, there is a Durga Mandir temple in front of the school gate of Army Public School. So the area without these facility, the life these in the area where we are living. So these neighborhood services are very useful for the people who are living in that area, Is it clear? Now see student, when I थोड़ी सी recapitulation कर लेते हैं. We in the beginning we start with the neighbors. So we are living in a family. हम किस में रहते हैं बेटा? We are living in a family. Okay, in the house. In the same manner, there are many families around us, so that they are our neighbors. वो क्या है? हमारे जो अगल बगल हमारे जैसे घर के हैं, वो क्या है? neighbors हैं. And which area you are living? So lot of facilities are in your area, that is the neighborhood services, which make our life good, and comfortable. Is it clear? अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हो जहां ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ही नहीं है, ठीक है, आपका घर ऐसी जगह पे है जहां आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं मिल रही है, आपको 2-3 किलोमीटर वॉक करके जाना पड़ा, 5 किलोमीटर, तो परेशानी तो होगी ना बेटा, है ना? सो these neighborhood services are very useful for us. ये जो neighborhood services हैं, ये बहुत यूजफुल है हमारे लिए. They make our life comfortable. Is it clear? So now another important thing which in the children must understand, में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, importance of helping one another. ठीक है. Now see how peoples help each other. Neighbors help each other in times of need. ठीक है. देखो बेटा क्या है ना, आज ये when we are थोड़ा सा बैक पास्ट में चलते हैं. देखो पास्ट में क्या होता था कि मैक्सिमम लोग विलेजेस में रहते थे, ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करती थी. देयर इज अ ज्वाइंट फैमिली, देयर आर मेनी मेंबर्स. आप लोगों को फैमिली चैप्टर मैंने पहले पढ़ाया होगा. इन प्रेजेंट टाइम क्या है? पहले क्या था? मैक्सिमम पीपल देयर ऑक्यूपेशन, वो क्या करते थे? धंधा करते थे, फार्मिंग करते थे, खेती करते थे. मैक्सिमम फैमिलीज ज्वाइंट फैमिली होती थी. नाउ सी स्टूडेंट, द टाइम इज चेंज. अब स्मॉल फैमिलीज ज्यादा होने लगी हैं, and education
हैज ब्रिंग अप द चेंज। एजुकेशन ने बहुत चेंज ला दी है प्रेजेंट टाइम में। अब आप पढ़ाई कर रहे हो, आप भी आज छोटे बच्चे हो, आप मान लो बनारस में लगते हो, यू आर लिविंग इन वाराणसी, ठीक है, आप बड़े हो जाओगे, मे बी यू गेट अ वेरी गुड जॉब इन मुंबई और इन मद्रास। बहुत दूर है ना, बनारस से दूर है ना, लेकिन ड्यू टू जॉब अर्निंग के लिए आपको जाना पड़ेगा। बोलो यस और नो। सो इन प्रेजेंट टाइम नेबर्स जो है ना, प्रेजेंट टाइम में मैक्सिमम स्मॉल फैमिलीज रह रही हैं, बिकॉज मे बी फादर इज वर्किंग और मदर इज ऑल्सो वर्किंग और एनी वन ऑफ देम इज वर्किंग। सो दिस इन प्रेजेंट जो सिचुएशन में देखो तो आज तो हम लोग अक्सर देखो छुट्टियां पड़ती हैं, समर वेकेशन होता है, तुम लोग कहते हो विलेज जा रहे हैं, दादा दादी के पास जाएंगे, मामा के यहाँ जाएंगे, नाना नानी के यहाँ जाएंगे, क्योंकि छुट्टियों में, क्योंकि मेन है कि आज प्रेजेंट पे हम लोग बात करें तो मैक्सिमम फैमिलीज क्या हो गई हैं, स्मॉल फैमिली हो गई हैं। हम लोग अपनी जो बड़ी वाली जो बिग फैमिली बोलते थे ना, ज्वाइंट फैमिली, उससे हम लोग बहुत दूर होते हो गए हैं, क्योंकि वेयर या फादर इज डूइंग सर्विस और या मदर इज डूइंग सर्विस, आप वहीं सेटल हो रहे हो। हाँ, व्हेन यू गेट द हॉलीडेज एट दैट टाइम यू गो टू योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। सो इन प्रेजेंट टाइम सी स्टूडेंट, वी मस्ट हैव ए हेल्पिंग नेचर हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो एज ए नेबर वी शुड हेल्प ईच अदर, ठीक है, एज ए नेबर वी शुड हेल्प ईच अदर। आप लोग भी कई बार होता है, देखो आप आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हो, आपकी मम्मी है, ठीक है, अगर उन्हें मार्केट भी जाना, पापा आपके जॉब में है, तो आपकी मम्मी को जाना होता हो कई बार मार्केट में, सामान लेने जा रहे हैं आपके लिए, बुक्स लेने जा रहे हैं, तो फॉर अदर पर्पस, ओके। सो मेनी टाइम्स हम भी कभी अपने घर से जाते हैं तो बगल वाले आंटी से बोल दिया, अपने नेबर से बोल दिया कि प्लीज टेक केयर ऑफ द किड्स। ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स होते हैं, वी ऑलवेज, हमें हमेशा अपने बच्चों की वो टेंशन या चिंता बनी रहती है। तो दैट इज स्मॉल स्मॉल हेल्प। हेल्प मतलब ये नहीं अब सारा दिन उनके घर जाके काम कर रहे हैं। हाँ, वी शुड हैव ए हेल्पिंग नेचर, वी शुड हेल्प ईच अदर, वेदर इट इज ए फेस्टिवल और एनी ओकेजन और एनी नीड, समवन फेल सिक, कोई बीमार हो जाता है, बाई चांस कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, सो इन दिस मैनर यू कैन, वेयर यू आर लिविंग, यू कैन हेल्प योर नेबर्स एट दैट टाइम। इज इट क्लियर? जैसे देखो, हेल्पिंग वन अदर, नेबर्स हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड। इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है ना, नेबर्स जब भी जरूरत होती है एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, क्योंकि अब हम अपनी बिग फैमिली में तो है नहीं। अगर आप किसी की हेल्प करोगे एंड बाई चांस ऐसा ना हो, बाई चांस इफ यू आल्सो नीड हेल्प ऑफ अदर, डेफिनेटली द अदर पर्सन विल आल्सो हेल्प यू। इज इट क्लियर? सो नेवर हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड। जब भी हमें आपस में जरूरत होती है तो एज ए नेबर, दो पर्सन हु आर लिविंग नियर टू अस, डेफिनेटली दे हेल्प अस, ओके। वेल फातिमास मदर, और इसी चीज को एक छोटे से स्टोरी की तरह ये तुमसे एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। हमें आपस में एक दूसरे की नीड्स में हेल्प करनी चाहिए। द सेम थिंग he want to explain you in the form of a small story, एक स्मॉल स्टोरी की तरह तुम्हें एक्सप्लेन करना चाह रहा है, ठीक है। सी लिसन द स्टोरी। When Fatima's mother was sick, Rahul mother helped Fatima mother to take care of her. When Rahul celebrate his birthday, Fatima mother helps Rahul mother to prepare snacks. अब नाउ देखो, बहुत अच्छी छोटी सी स्टोरी है। When Fatima mother was sick, ठीक है, फातिमा की मम्मी सिक थी, बीमार थी उसकी मम्मी, तो एट दैट टाइम व्हाट हैपन, एज ए गुड नेबर राहुल मदर हेल्प हर, राहुल की मम्मी ने उसकी बहुत हेल्प की। नाउ व्हाट्स हैपन, अब क्या है आप देख लो, व्हेन राहुल सेलिब्रेट हिज बर्थडे, अब क्या आया, राहुल का बर्थडे आया,
तो बर्थडे तो राहुल का है ना, तो राहुल की मम्मी को ना सब करना चाहिए, बट नो, राहुल, बर्थडे किसका है? राहुल का। सो एट दैट टाइम फातिमा मदर हेल्प राहुल मदर इन मैनी काइंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, या फूड रिलेटेड या डिशेस बनाने में मदद कर दी, या कुछ भी किया। तो इस तरह बेटा हम लोग छोटी छोटी हेल्प आपस में एक दूसरे की हमें करनी चाहिए, ठीक है। इज इट क्लियर? दिस इज अ गुड हैबिट ऑल्सो। वी शुड हैव ए हेल्पिंग नेचर। हमारा कैसा नेचर होना चाहिए? हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो दूसरा भी आपकी हेल्प करेगा, ठीक है बेटा। जैसे क्या हुआ, फातिमा की मदद से थी, राहुल की मम्मी ने हेल्प की ना, फिर जब राहुल का बर्थडे आया तो फातिमा की मम्मी ने भी तो हेल्प की। सो वी शुड हेल्प ईच अदर, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड हैबिट, हेल्पिंग अदर्स। जैसे देखो आप भी करते हो हेल्प, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि हेल्पिंग बड़ों को ही करनी चाहिए। आप तो बहुत छोटे हो, मैं तो बहुत छोटा हूं, अभी तो मैं खुद क्लास 3 में पढ़ रहा हूं। आई हैव नो मनी, हाउ कैन आई हेल्प? मैं तो कुछ नहीं कर सकता किसी के लिए, बट इट इज नो बेटा, हेल्प इन मैनी वेज। घर में छोटी मोटी हेल्प कर दी मम्मी या पापा की, या फॉर एग्जाम्पल आप देखो कभी कभी आपके फ्रेंड्स आर डू टू सिक हैं, एंड फॉर मेनी डेज दे आर अनएबल टू कम टू द स्कूल। सो हाउ you help them? By giving them their copies to complete the pending work। आप कैसे हेल्प कर सकते हो अपने फ्रेंड्स की? आप अपनी कॉपीज उसे दे दोगे कि प्लीज टेक माय कॉपी एंड कंप्लीट योर पेंडिंग वर्क। इज इट क्लियर? होता है ना इस तरह आपस में, कभी कभी होता है कि कोई बच्चा टिफिन नहीं लाता है तो उसके फ्रेंड शेयर कर देते हैं टिफिन, कोई बात नहीं, यू कैन शेयर टिफिन माई फ्रॉम मी ऑल्सो। इज इट क्लियर? तो हेल्प आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। सो सी स्टूडेंट, जैसे एक एग्जांपल और दे रहा है, देखो इन दिस सोसाइटी देयर इज अ मैन, हिज नेम वाज मिस्टर लाल। ओके, अनदर गुड स्टोरी, सी व्हेन मिस्टर लाल एंड एल्डरली मैन, एल्डरली मतलब काफी ज्यादा एज होगी उनकी, बूढ़े हो गए थे वो, ठीक है। एल्डरली मैन फॉल्स इल, वो एक बार क्या हो गए, बीमार हो गए। Everyone in his neighborhood take turns to take care of him, they become his family। देखो sometime this type of things also happen, कि क्या होता है कि बच्चे मान लो मिस्टर लाल इज अलोन इन दैट सोसाइटी, उसमें अलोन है, वो अकेले हैं। अब एक एज होती है व्हेन वी नीड हेल्प ऑफ समवन, ठीक है। इस समय हम यंग हैं, फिट हैं, हेल्दी हैं, वी आर एबल टू डू ऑल थिंग्स, बट वंस अपॉन ए टाइम वी नीड हेल्प ऑफ अदर्स, बिकॉज मैंने बोला है ना एल्डरली एज में क्या हो जाते हैं, हमारी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, वॉकिंग में परेशानी हो रही है, अनएबल टू स्टैंड प्रॉपरली, ठीक है। सो देयर आर मेनी मेनी थिंग्स, जस्ट मैं बता रहा हूं। तो ड्यू टू द एज व्हाट हैपेंस, आवर बॉडी पार्ट्स बिकम वीक, सो इन दैट एज वी नीड हेल्प ऑफ अदर्स, हमें दूसरे की हेल्प की जरूरत होती है। बाई चांस इफ समवन इज अलोन इन द सोसाइटी, उसके फैमिली से कोई नहीं है, तो एज ए गुड नेबर, अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा दिन आप उसके यहां रहोगे, एज ए गुड नेबर there are many other families which are also living in that area, सब 1 hour 2 hour के लिए टर्न बाई टर्न उसके पास चले जाएं तो उसकी हेल्प हो जाएगी ना, बोलो यस और नो। ऐसा तो नहीं है हम अपने घर का काम छोड़ के पूरा दिन वहां जा सकते हैं, नो, बट अदर मेंबर्स आल्सो ऑफ दैट एरिया 1 hour 1.5 hour 2 hour or 30 minutes, in this manner if we go in his home, bring his medicine, show him to the hospital, हॉस्पिटल में उसे दिखा लिया, मेडिसिन टाइम पे दे दी, या he was unable to cook, then give food also to eat, take him in the morning for the walk। So these are the small small things
which you can also do. Is it clear? So helping one another, that is a very good quality. If you have such quality, then you are very good person. We should help others. अगर आप नहीं करते हो हेल्प, तो स्टार्ट डूइंग दैट. हमें हेल्प करनी चाहिए. इट्स अ वेरी गुड quality of a any person. We should help others. Is it clear? So student, in today video we started a new chapter, a friendly neighborhood, and what is neighbor, and what do you mean by neighbors. This I explained to you. And after that, what are the neighborhood services which are in our area, which make our life comfortable. That also today, in not in a detail, just I have written the name of that neighborhood services, which services are very common in all types of the area in which the peoples are living. चाहे कोई किसी भी प्लेस पे रह रहा होगा, लेकिन ये ऐसी कॉमन नेबरहुड सर्विसेज हैं जो सारे एरियाज में आपको मिलेंगी. Is it clear? So this thing we have discussed, and after that we discuss helping one another. We should help each other. Okay, thank you student. Enjoy the day and do some study also for your unit test 1 exam.